Hello everyone, how are you all? Sir, I'm I'm fine. What About about you? fine, sir. What about you? I'm also fine. I'm also fine, thank you. But in this session, we are going to study English subject, and today I will take the session. As per my information, as per conversation with you all before starting this session, already the chapter explanation already has been done. And today we are supposed to start the vocabulary junction. In this section, we are going to learn about the compound adjective. And before moving on the compound adjective, I would like to confirm that whether you all are knowing about the adjective or not. So let me Yes, sir. let me confirm that how many are knowing about the adjective? What is the adjective? Who can tell about the adjective? Only adjective. Okay, Mehak and Deepika. Deepika also can tell. What about Aviral? Okay, Mehak, you tell us, beta. You tell us about something about the adjective. Sir, adjective is a word that tells us about noun and pronoun. Okay, very good. Deepika, also you can tell something about. Adjective is a word which qualify noun or pronoun. Okay, Aviral, what do you want to say? Beta, first. An adjective is a word that qualifies noun or pronoun. Okay, Aviral is telling an adjective is a word that is modifying noun or pronoun. Mehak ने क्या बोला? Adjective is a word that tell more about the noun or pronoun. ऐसे तो बोला शायद. Okay, Arun, what about you? Also, can you also tell about the adjective? So the adjective is a word that qualifies noun and pronoun. Telling the definition. Now you all need to tell few words about few examples of adjective. Few examples of adjective. I need 2 examples from each one, from everyone. I need 2 example of adjective from everyone. Abiral, Mehak, Deepika, Arun. But Yes, you sir. told about the definition. You told the definition of adjective. Just you need to tell the example of the adjective. Deepika. Sir, like, sir, happy, sad. But, your voice is not clear. Can you pardon, please? Pardon, please. Can you speak once again? Sir, like, Like is sir, a like आपका no, sir. No, sir. yes. Sir, heat, cold, He. green. Acha, can you tell me one sentence? Can you frame a Sir, sentence using having this kind of adjective? sir, Can you give some example of adjective? Can you give some example? Can you frame a sentence where an adjective should be there? एक सेंटेंस आप मुझे yes, बता दीजिए जिसमें एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हैं, हीट या कोल्ड जो भी आप बोल रहे हैं. sir, the milk is very heat. Sir, heat इसमें adjective है. Mehak, you tell us about the adjective. Sir, Ramu is a honest boy. The water is very cold. The ice cream is also. Sir, Okay. आपने बोला राहुल is a which kind of boy? Rahul is a good boy or bad boy, honest whatever. boy. So that means कि good and bad is referring about good and bad is referring the noun. Whatever the adjective you have told, actually the word was not clear. I could not hear properly. Aviral, can you also give you some example of adjective? Yes, sir. The elephant is very big and the ant is very small. The elephant is very big and the ant is very small. May I tell? Yes, Arun. Sir, the horse runs very fast. Beta, you were telling that the horse runs very fast.
ये फास्ट आपका इसमें कौन सा वर्ड फिलहाल एडजेक्टिव है, हमें ये बताइए। सर फास्ट। फास्ट, ये फास्ट किसको, नाउन को, नाउन के बारे में बोला जा रहा है, वो तेजी से, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है दीपिका जो अरुण ने बोला, इज इट करेक्ट? यस सर। महक आप बताइए। नो सर। यस सर। क्यों क्यों गलत है, व्हाट इज रॉन्ग? सर सही है। महक इज टेलिंग दैट इट इज करेक्ट, द हॉर्स इज रनिंग वेरी फास्ट। बेटा द फास्ट जो है वो हॉर्स को रेफर कर रहा है या उसके क्रिया के, उसके वर्ब में जो उसका एक्शन है उसको उसको उसकी विशेषता बता रहा है? सर उसके एक्शन किसको? सर उसके वर्ब का। उसके वर्ब का, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हुआ या एडवर्ब? सर उसके वर्ब को बताना। इसके वर्ब के इसके 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 सर एडवर्ब। तो ये क्या जो एग्जांपल अरुण ने दिया, इज इट करेक्ट? नो सर। नो बेटा, you have to tell a word that should be telling about the noun. जैसे आप बोल सकते हैं ब्लैक आई, आईज इज ए नाउन। आई तो आपका फिलहाल कहीं पे कोई काम तो है नहीं, कोई एक्शन तो है नहीं, आईज इज ए नाउन। तो ब्लैक आई, तो दैट इज ब्लैक इज एडजेक्टिव, वो आई के बारे में बता रहा है। अभी किसी ने एग्जांपल दिया कि राहुल इज ए क्लेवर बॉय, या आप बोल सकते हैं कि राहुल इज ए इंटेलिजेंट बॉय। तो बॉय इज ए नाउन, बॉय को एक क्रिया तो है नहीं, और बॉय को बता रहा है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, दैट मीन्स कि इट इज मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। सीधा ये किसी वर्ब के बारे में, जो आपका इंटेलिजेंट वर्ड है, ये कहीं ना कहीं बॉय के बारे में बोला जा रहा है, तो इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, नॉट ओके। बेटा ये तो रहा एडजेक्टिव, आई होप कि एडजेक्टिव, इससे एक चीजें क्लियर हो रहा है, यू ऑल आर नोइंग समथिंग अबाउट एडजेक्टिव। कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूज है, बट वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। Now move ahead. You have to tell the definition of adjective. Already you have told the definition of adjective. Thereafter you told some examples of adjective. Now you have to tell a pair of adjective, yani two words of adjective which is being used together, जो दोनों एक साथ जुड़ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे कि नहीं, दो वर्ड्स, लेट्स से कि आप दो एडजेक्टिव क्या, दो ऐसे वर्ड्स आपको पेयर, ऐसे दो ऐसे वर्ड्स के ऐसे पेयर आपको बनाना है जो वो दो वर्ड्स मिलकर के एडजेक्टिव का काम करें। क्या कुछ आपके मन में ऐसा है? एक बार कोशिश करिए, यू कैन ट्राई। इफ यू डोंट हैव, देन आई विल गिव यू द सम एग्जांपल। लेट्स से आई एम टेलिंग यू, many of you have heard about that कि I am working as a part time. This is a part time job. आपने बोला, लेट्स से कई बार बोला जाता है दिस इज ए पार्ट टाइम जॉब, या एक पार्ट टाइम जॉब है। जॉब इज अ नाउन, जॉब तो कोई एक्शन तो है नहीं ना बेटा। यस सर। अपना माइक आप लोग बंद। यस सर। फिर मुझे समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। दीपिका माइक ऑन रखें, जो पूछा जाए तुरंत आप उसको रिप्लाई करें, माइक बंद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये चैप्टर खत्म करना हुआ तो मैं पढ़ा करके खत्म कर दूंगा, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने में मैं अचानक नहीं, दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होना चाहिए। Conversation should be happening from both the hands. Yes sir. Yes sir. I hope that many of you have heard that someone is saying that this is a part-time job. Job क्या? Yes sir. या कोई particular नाम का नाम ही है, नाम है ना job. Job part-time. Yes sir. जो part-time word है, that is referring, जो part-time word है, ये कहने के job के लिए यूज किया जा रहा है। तो part-time PART पार्ट और TIME टाइम, उन दोनों के बीच में हाइफन यूज कर देते हैं इस तरह, जैसे पॉट यूज किया गया है, तो पार्ट टाइम में एक हाइफन का यूज कर लेते हैं। तो दो वर्ड से मिलकर के जो एडजेक्टिव बनते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं कि अच्छा है, खराब है, कैसा है, those two words having
type 1 is known as a compound adjective. ठीक है, आपने adjective already एक सीखा, आप लोग जानते हैं. In today's session, in this section, you all need to learn about the compound adjective. The compound adjective है क्या? What is compound adjective? It should be very clear. So let us read the paragraph. Then I will be telling more about the compound adjective. Okay, Deepika, read this. Read the from here. Read the line. Their pockets plug with coin like the stomach of the pot-bellied Kuber, the Hindu god of wealth. Okay, next. What a beautiful heart-moving sight it is! What perfect coordination of movements! Okay, the world is wait. in blood at. Deepika, wait. You have these two sentences has been picked from your from the story whatever you have read in this chapter. In these two lines, there is bold. Two words in these two sentences. There are few words that is in bold. Bold यानी जो कलर मतलब थोड़ा सा गाढ़े कलर से लिखे हैं. Pot, wheel, heart moving. Heart moving sight. Sight एक तरीके से दृश्य बोला जाता है. What a beautiful. What a beautiful. कितना सुंदर है. Heart moving sight it is. किसी पर्टिकुलर जगह की बात किया जा रहा है. बहुत ही हार्ट मूविंग साइट है. कई बार कहा जाता है बहुत ही हार्ट मूविंग साइट, मतलब इस साइट के बारे में जो हार्ट मूविंग वर्ड है, ये हार्ट मूविंग किसके बारे में यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है? हार्ट मूविंग वर्ड्स have been used for the sight word. साइट के लिए किया गया है. इस साइट की विशेषता बता रहा है कि कितना अच्छा है या खराब है. तो हार्ट मूविंग मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं हार्ट मूविंग का यू कैन रेफर दैट की मतलब एक होता है ना कि कोई अच्छी जगह देखना है तो बहुत उतावले हम लोग हो जाते हैं, तो दैट इज रेफरिंग विद द हार्ट मूविंग. तो कहीं ना कहीं हार्ट मूविंग वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द नाउन वर्ड साइट. ये साइट किसी जगह के लिए यूज किया जा रहा है, उस जगह तो साइट के. What a perfect coordination of movement. What a perfect coordination of movement. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का जो मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन है उस बहुत ही परफेक्ट है. जैसा लाइन है आपने now move ahead. The words in the bold are adjective. जो बोल्ड में यूज किया गया है हार्ट मूविंग एडजेक्टिव ही तो है क्योंकि ये साइट की विशेषता बता रहा है, साइट के बारे में बता रहा है. Yes, sir. Heart moving is an adjective. But, however, they are Yes, sir. simple adjective. लेकिन क्या है जो सिंपल एडजेक्टिव होता है सिंगल वर्ड का, जिसको आप बोलते हैं बैड, गुड, गॉर्जियस, क्लेवर, ये जो नॉर्मल आपका जो बहुत ही सिंपल एडजेक्टिव होता है सिंगल वर्ड्स के, उन एडजेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है तो एडजेक्टिव ही. ये मूविंग सिर्फ मूविंग यूज होता या सिर्फ फार्ट यूज होता तो कोई एडजेक्टिव नहीं था. बट हार्ट मूविंग साइट यानी साइट के बारे में बताया जा रहा है कि हार्ट मूविंग से साइट के क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, साइट के बारे में साइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है. दैट मीन्स कि हार्ट मूविंग एक तरीके से एडजेक्टिव ही है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एडजेक्टिव. हियर टू वर्ड्स हैव जॉइंड टू फॉर्म एन एडजेक्टिव. यहाँ पे क्या हुआ है, दो वर्ड्स मिलकर के एक एडजेक्टिव बना रहे हैं. Two words have joined to form an adjective. In this line, जैसे यहाँ पे pot, wheeled हो गया, heart moving हो गया. यहाँ पे क्या है, दो वर्ड्स को मिलकर के एडजेक्टिव किया गया है. जो एडजेक्टिव बन रहा है दो वर्ड्स मिलकर के तब बन रहे हैं जो कि नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन की क्वालिटीज को बता रहे हैं. Such adjective are called the compound adjective. इस तरह के एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं. Yes, sir. All right. Yes, sir. I hope. Yes, sir. Yes, sir. को अगर आप डायरेक्टली एडजेक्टिव बोल देते हैं तो गलत नहीं होगा. You all can understand this one. But
In the adjective there आप लोग बड़े हो चुके हैं, right now you all are studying in class 6. तो adjective adverb ये तो छोटे क्लासेस में रहा. Now you have moved on a level where you can identify that ki which one is the simple adjective and which one is the compound adjective. तो compound adjective क्या है, इस चीजों को समझ सकते हैं. अब compound adjective is a formed when together to form a single adjective. ध्यान देने की बातें हैं. This is the definition of compound adjective. A compound adjective is formed when two or more words join together to form a single adjective. जो compound adjective होते हैं वो दो या दो से ज्यादा वर्ड, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ दो ही वर्ड के बीच में यूज हो, दो से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि देयर शुड बी ओनली द टू वर्ड्स. देयर मे बी मोर देन टू वर्ड्स शुड बी देयर. Maybe more than two words can be used to modify a noun or pronoun. Noun और pronoun को modify करने के लिए दो या तीन, दो से ज्यादा words का भी यूज किया जा सकता है. तो जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाए, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर के किसी भी नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव के रूप में, किसी नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव के लिए दो या दो से ज्यादा वर्ड्स यूज किए जाएं या दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर हो, दैट काइंड ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव. ऑलराइट? यस सर. Yes, sir. The words are usually joined by a hyphen when placed before a noun. The words are usually joined by a hyphen or hyphens. There are two hyphens. एक hyphen है single. If there is only single hyphen, that is a hyphen. If there is more than two words, अगर three words हैं तो सारे words एक दूसरे से hyphen से जुड़े होंगे. Hyphen क्या होता है? ये बीच में जो dash है, हार्ट मूविंग के बीच में डैश है, आप इसको डैश बोलते हैं, लाइन, छोटी सी लाइन. Yes, sir. एक्चुअली इट इज अ हाइफन. यस सर. जैसे फुल स्टॉप कॉमा आप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ हाइफन. ओके? Yes, sir. अब यस सर. इन हियर यू आर हैविंग ओनली टू वर्ड्स, तो बिटवीन द टू वर्ड्स ओनली वन हाइफन इज बीइंग यूज्ड. So that means there is a hyphen. If at any of the place there are more than two words, जहाँ पे मान लो three words होते हैं यहाँ पे, तो इन सभी words के बीच में hyphen यूज होता है, तो more than two hyphens होते हैं, तो यहाँ पे hyphens भी यूज के लिख दिया गया है. The words are usually जो words होते हैं एक दूसरे से सामान्यतः hyphens या hyphens से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से. When placed before a noun, जो कि noun के पहले यूज किया जाता है. ये compound adjective की बात करें तो कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज कंपाउंड एडजेक्टिव? आई होप इट इज क्लियर. हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट की व्हाट इज कंपाउंड एडजेक्टिव? दीपिका, अबिरल? यस सर. यस सर. ओके, मूव अहेड. Yes, sir. Look at these examples. Now move on the another example. The girl sang a very melodious song. The girl sang a very melodious song. In the second line, the big brown dog started chasing us. In the third one, he is a part-time worker. There are three sentences. There are three examples. In these three lines, we have to identify the adjective. सबसे पहले हम adjective देखेंगे कि how many adjectives are there, मतलब whether the adjective are there or not. If there is an adjective, then we have to check that कि whether that adjective is a type of compound adjective or not. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या एडजेक्टिव उस लाइन में, उस सेंटेंस में है भी या नहीं. अगर एडजेक्टिव है तो क्या कोई जरूरी नहीं कि वो कंपाउंड एडजेक्टिव हो. इफ देयर इज एडजेक्टिव होगा तब उसके बाद हम देखेंगे कि उधर द एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव है वो कंपाउंड एडजेक्टिव तो नहीं है. वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स. So look into the first line. The girl sang a very melodious song. Which one is the adjective? Which word is the adjective in this sentence? Sir? Which word is the adjective in this sentence, beta? Melodious. Melodious. Very melodious. Melodious is being used for which word? जो melodious है ये किसके लिए यूज किया गया है? गर्ल के लिए या sang के लिए या गर्ल song के लिए? Sang. किसके लिए? Sir.
Sir, girl. गर्ल सॉन्ग के लिए, मेलोडियस सॉन्ग आप कहते हैं ना, Yes. बहुत मतलब सॉन्ग के लिए यूज किया गया है, ठीक है। सॉन्ग इज ए नाउन, मेलोडियस सॉन्ग। आपको एक कंडीशन ये भी बताया गया है, जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वो मतलब सामान्यतः नाउन के पहले ही यूज होता है। तो सॉन्ग इज ए नाउन, सॉन्ग मीन्स तो गाना होता है ना, तो सॉन्ग इज ए टाइप ऑफ अ नाउन की कोई आपका वर्ब है, क्या है ये? Sir, noun. नाउन ही है ना, Now. और ये मेलोडियस है। Yes, sir. इस सॉन्ग के बारे में बता रहा है, गुड सॉन्ग, बैड सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, कुछ भी, मतलब कोई भी, मतलब नॉर्मल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं ना, जो आपका सिंपल एडजेक्टिव जो सिंपली हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये मेलोडियस सॉन्ग, क्या ये मेलोडियस जो है, क्या ये कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है सॉन्ग के लिए, या बिल्कुल सिंपल है? No, sir. No, sir. यस No, सर। sir. ये मेलोडियस सॉन्ग जो है वो सिंपल एडजेक्टिव की तरह, जो मेलोडियस है ये एडजेक्टिव है। अब ये आपको ये देखना है कि वेदर दिस मेलोडियस इज ए कंपाउंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव, किस तरह के एडजेक्टिव है ये? Sim. डोंट वरी, Sir. just whatever you are having in your mind, you have to tell, गलत हो सही हो, it doesn't matter, whatever you have mind, आप बताइए, एक बार तर्क बताइए, why it is। yes दीपिका। Sir, sir, simple. okay महक, what about you? Sir. yes महक। अबीरल। Sir, sir, compound. महक, what about you? beta I am not getting voice from your side. Aviral, why it is okay? Aviral, Deepika, beta you tell us beta, why it is a simple, why you feel that, आपको ऐसा क्यों लगता है, why do you feel that कि it is a simple adjective, ये simple adjective है, ऐसा क्यों लगता है? Sir, डोंट वरी, हाँ बिल्कुल आप सही सर बता रही हैं। क्योंकि जब टू और टू से ज्यादा वर्ड्स ज्वाइन होते हैं एडजेक्टिव में, तब वो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, वरना Deepika is absolutely, Deepika is correct, Deepika is right, this is a simple adjective। कंपाउंड एडजेक्टिव वो होते हैं अविरल, लिसन केयरफुली बेटा, द कंपाउंड एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर। और यहां से करनी समझ में आ रहा है, यहां पे देखिए टू वर्ड्स इन बोल्डर एडजेक्टिव, देखिए यहां पे। अब यहां से पढ़े, देयर आर डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एडजेक्टिव, टू वर्ड्स हैव जॉइंड द फॉर्म एडजेक्टिव मॉडिफाइड। बेटा द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव क्या है अविरल, ध्यान दीजिए, व्हेन टू और मोर वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर, when two or more words, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके किसी एडजेक्टिव की तरह बने, एडजेक्टिव जैसा काम करे, एडजेक्टिव फॉर्म करे, मतलब वो एडजेक्टिव आपका कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। मेलोडियस, in the melodious word there is only single word, this is a simple adjective। what about the second line, the big brown dog started chasing us, can you tell us that which word, yeah, which words are adjective? Deepika, yes sir, in the second line you have to tell the adjective words। sir, big and brown। big and brown, there is a two adjective as per Deepika। Mehak, what about you? Abiral, Yes, sir. Big and brown. Abiral beta, Sir, big only big and brown. brown क्या है? ये brown dog जो कुत्ता है वो brown है, यानी ये dog के बारे में brown बता रहा है, तो it is also the adjective ना? Yes, sir. Yes, sir. ये big जो है ये भी dog के लिए यूज किया गया है। The big word also has been used for the dog word। That means कि big and brown both are adjective। Big, brown both are adjective, but yes, sir. You have to tell that you have to identify that कि whether these adjective big, brown ये adjective क्या compound adjective है या नहीं? Yes, no sir, it is compound adjective or not? Sir. no sir, No, sir. Compound adjective है, simple adjective है, क्या है? sir, simple adjective। Why it is simple Sir, adjective? simple adjective.
सर बिकॉज इसमें हैपन नहीं है. Because the words are usually joined. Okay बेटा, एक चीज में I want to clear that कि अविरल ने बोला कि because there is no hyphens between two words. Okay, अविरल you are correct. Absolutely you are correct. And whatever the जो भी आपने ये तरीका फाइंड आउट किया है कि हाँ ये हाइफन्स होने चाहिए, दो से ज्यादा वर्ड्स होना चाहिए, लगभग 95% आपके आंसर सही जाएंगे. 95% at that more than 95%. But it is not necessary that there should be a hyphen. दो वर्ड्स मिल करके देखिए, दो वर्ड्स मिल करके मैंने यहाँ पे in this line, where is the line? Yes, heart moving यहाँ पे दो वर्ड्स है ना, सिर्फ दो वर्ड्स में से एक वर्ड निकाल देंगे तो ये हार्ट विशेषता नहीं बताएंगे. हार्ट विल बी नॉट वर्किंग एज ए एडजेक्टिव. If we remove hurt, then moving also is not going to be work as a. That means कि दो वर्ड्स है, हाइफन रहे या ना रहे, अगर दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं एक एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए, देन इट विल बी कंपाउंड एडजेक्टिव. फिलहाल आपने जो बोला हाइफन इज नॉट देयर, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ कंपाउंड एडजेक्टिव. इट इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, इन द लास्ट लाइन ही इज अ पार्ट टाइम वर्कर. बेटा compound. Which one is the adjective? सर पार्ट टाइम. Part time. Is it the compound adjective or not? सर कंपाउंड एडजेक्टिव. Compound. There is a two words पार्ट टाइम, दोनों वर्ड्स का यूज किया गया है. इसी से आप वर्कर को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है. वर्कर कैसा वर्कर है? पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, क्या है? ये पार्ट टाइम वर्कर है, मतलब ये वर्कर के बारे में बता रहा है. एंड देयर इज दो वर्ड्स मिलकर के एक विशेषता, एक एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हो. एंड आल्सो हाइफन हैज बीन यूज्ड. दैट मींस कि पार्ट टाइम इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव. बेटा अभी समय का बहुत मुश्किल चल रहा है. एट 11 o'clock already we are having another class for other class, so I have to wind up this session. Okay, so let me confirm that ki I hope that everyone have understood about the compound adjective. Compound adjective समझ में आ गया होगा ना बेटा? Yes sir. Yes sir. You all have to read these sentences, these lines. In these lines, ये जो आपने कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, इसी को और डिटेल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. तो यू ऑल नीड टू रीड these examples and thereafter you have to solve the exercises. Question number 1, 2, 3 in the book A and book C as well. Whatever the question you all can solve, whatever the exercise you all can solve, you have to solve. जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, I will explain in the next class. Okay बेटा? Yes sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी आपका सब मिला के vocabulary junction में जो भी एक्सरसाइजेस है इन द बुक सी एंड बुक ए, यू ऑल नीड टू सॉल्व. और आपको स्वयं अपने मर्जी से सॉल्व करना है. आपको ये चेक करना है कि क्या आप अपने आप कर ले जाते हैं नहीं. अगर कर ले जाते हैं, इफ यू कैन डू, दैट मींस द कंपाउंड एडजेक्टिव आपको पूरी तरीके से आ गया. अगर नहीं कर पाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, और अगली क्लास में आप बिल्कुल कर ले जाएंगे. ओके? Yes sir. ठीक है बेटा, आज के लिए Yes, sir. बाय एवरीवन. Goodbye, sir. Goodbye. Sir, goodbye. अंश पांडे, यू आर लेट. बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा आपने छोड़ दिया. आप बिना पूरा वीडियो देखे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप शायद एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाएंगे. सर हम इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करके सर ज्वाइन होंगे थे. बेटा what you have to do, you have to watch the full video of this live class, then only you can solve the exercise. एक बार अपना पूरा वीडियो में अपलोड होगा, आप इसको देखिएगा. thereafter try to solve the exercises. or if you are going to leave the session, if the next time if you are absent, then the loss will be yours only. जो लॉस होगा वो आपका ही केवल होगा. you are in the loss, not time. Already I have done the exercises, I have taught the concept, and the video, the lecture of video is going to be uploaded in the YouTube. I can show anywhere that I have taught. Your child was absent, you were absent. और उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा ना हो, पढ़ाई आपकी है, नुकसान ना हो ले पाए. Okay, goodbye everyone. Goodbye, sir.